سن رہی اسلامی رشتے کی عزت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی المجد والثناء والعز والبقاء والرفعۃ والعلا والعظمۃ والکبریاء، وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا فی السراء والضراء وعلى آله الطيبين وصحبه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، نبی کے عشاقوں، ایک بار آقا نامدار ہم غریبوں کے غم گسار سیدی ابرار و اخیار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یتیموں کے والی، غریبوں کے مسیحا، جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس پاک پروردگار عالم کا کروڑہا احسان ہے کہ اس رب تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم سب جمع ہو کر اجتماعی طور پر نماز جمعہ کو عبادت کی شکل میں راضی کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں نے قرآن مقدس 12 سورہ زمر سے آیت کریمہ تلاوت کی۔ شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب مثوى نور و ہدایت مثال راہ اور مینارہ نور کے اندر اللہ جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کون؟ رب فرماتا ہے شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں۔ ایسے سمجھیے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں، وہ اپنے رب کی جانب سے نور پر فائز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جس کا سینہ پتہ چلا سب کا سینہ نہیں کھلا ہوتا، اللہ جس کا سینہ کھول دیتا ہے وہ نور پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور یہ نور کیسا ہے کہ یہ نور جب اس کے سینے میں اتر جاتا ہے اسے صبر و استقامت مل جاتا ہے، اس کو عبادت کرنے کا سلیقہ مل جاتا ہے، اس کو دنیا کی چیزوں سے مطلب زیادہ نہیں رہتا، وہ اپنی جان، مال، اولاد، تن، من، دھن سب کچھ رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے راضی رہتا ہے۔ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اللہ جس پہ کرم فرما دیتا ہے، اب اس پر گاڑیاں ہو کہ نہ ہو، اس پر مکان اچھے ہو کہ نہ ہو، اس پر موبائل فون اچھے ہو کہ نہ ہو، بلڈنگیں اچھی ہو کہ نہ ہو، کاروبار اچھے ہو کہ نہ ہو، عیش و عشرت ہو یا نہ ہو، عزت اچھی ہو یا نہ ہو،
इलाका अच्छा हो कि ना हो, डिग्रियां अच्छी हो कि ना हो, औलाद अच्छी हो कि ना हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस यही सोचता रहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दीन से नवाजा है, तो मैं जब मर जाऊंगा तो कब्र में मुस्तफा का दीदार होगा और मैदान हश्र में रब तबारक व तआला अपना दीदार अता फरमाएगा। ये सबको नहीं मिलता। अल्लाह फरमाता है शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी, अल्लाह जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है वो गरीबी और मालदारी नहीं देखता, वो बीमारी और परेशानी नहीं देखता, वो लोगों में अपनी इज्जत और शोहरत नहीं देखता, वो सब्र इस्तिकामत का दामन थामे रहता है, वो नमाजें पाबंदी से अदा करता है, अगर इस लायक है कि हज कर सके तो हज करता है। वो ये नहीं सोचता मर जाऊंगा तो औलाद के लिए कितनी दौलत रह जाएगी, मर जाऊंगा तो औलाद के लिए कितना कारोबार रह जाएगा, वो ये नहीं सोचता मर जाऊंगा तो औलाद के लिए कितनी गाड़ियां, कितना इलाका और कितना सरमाया रह जाएगा। वो तो बस ये सोचता है कि मर जाऊंगा तो मेरे पीछे क्या मेरी औलादें ऐसी हैं कि नमाजें पढ़ेंगी, रोजा रखेंगी, सदका देंगी, खैरात करेंगी, हज करेंगी, रोजे रखेंगी, मस्जिद बनवाएंगी, मदरसा बनवाएंगी, कुरान पढ़ेंगी, कुरान पढ़वाएंगी और मेरे लिए दुआ करेंगी कि मौला तू मेरे वालिद गिरामी की मग़फ़िरत फरमा। जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस पे करम फरमा देता है, वो जिस इलाके में चला जाए, जिस गांव में चला जाए, जिस देहात में चला जाए, जिस शहर में चला जाए, जिस मुल्क में चला जाए, जहां रहता है इस्लाम की नूरानी तालीमात से लोगों के दिलों को जिला पहुंचाता रहता है। वो जहां पहुंच जाए इस्लाम की खेती सरसब्ज़ो शादाब हरी भरी हो जाती है। वो जहां पहुंच जाए अल्लाह और उसके रसूल की बातें करता है। वो जहां पहुंच जाए इश्क़ रसूल के मोती बिखेरता हुआ नजर आता है। वो जहां पहुंच जाए अल्लाह के हबीब की सुन्नतों पर मरता हुआ फिदा होता हुआ नजर आता है। वो जहां पहुंच जाए मजहब इस्लाम के दामन को मजबूती से पकड़े रहता है। वो जहां पहुंच जाए वहां लोगों को दीन के बारे में समझाता है। वो खुद ही ऐसा लगता है जैसे चलता फिरता आशिक़ रसूल है। वो चलता फिरता ऐसा लगता है जैसे इस्लाम की दावत देने वाला कोई मुजाहिद आ गया है। जिसका सीना अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाम से खोल देता है, जिसका सीना इस्लाम के लिए रब खोल देता है, वो अल्लाह की जानिब से नूर पर फाइज हो जाता है। अब वो काला हो या गोरा, अमीर हो या गरीब, मोहताज हो या मिस्कीन, फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस इतना सोचता है कि अल्लाह ने मजहब इस्लाम की दौलत से मुझको नवाजा है, ये दौलत मेरे पास सबसे बड़ी दौलत है। आओ तुम्हारे जहनों को तुम करीब करो और रोशन कर दिया जाए और समझा दिया जाए। एक इलाके में 2-3 भाई रहते थे। सबसे छोटा भाई जो था बहुत गरीब था, मुफलिस था। उसके भाइयों ने उसकी शादी भी नहीं की थी, बहुत परेशान रहता था। मेरी तो शादी भी नहीं हुई, घर भी मेरे पास नहीं, भाइयों ने कब्जा कर लिया है, खेतों खलियान भाइयों ने बंटवारे में छीन लिए हैं, मुझको कुछ भी न दिया है। बाप से जो मुझको मिल्कियत मिलनी थी कुछ भी हिस्से में नहीं आया। बहुत परेशान है। कभी जंगलों से लकड़ियां काट कर बाजारों में बेच देता है, कभी किसी के यहाँ जाकर मजदूरी कर लेता है, फिर अपना गुजर बसर कर रहा है। कुछ दिन गुजरे के एक गरीब ने अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दिया है। जब घर में ज़ौजा आ गई, अब फाके होने लगे, खर्च बढ़ गया, इतनी आमदनी नहीं थी। वो नौजवान बड़ा परेशान है, रात दिन रब से दुआएं करता था, मौला मैं भूखा रहता था, कोई बात नहीं, शिकवा नहीं करता था, मौला मैं परेशान रहता था, कोई बात नहीं, हांडी नहीं चलती थी, कोई बात नहीं, लुकमा हल्क से नहीं उतरता था कई कई दिन तक, कोई बात नहीं, पर अब मेरे साथ मेरी बीवी है, शरीक हयात है, मौला
ये मुझसे शिकवा करती है, शिकायत करती है कि तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ओढ़ने बिछाने को नहीं है, खाने पीने के बर्तन नहीं है, जूता चप्पल नहीं है। मौला मैं बहुत परेशान हूँ, तू मेरी मदद फरमा। दुनिया वाले धुतकार रहे हैं, दुनिया वाले मुझे ठोकर लगा रहे हैं, भाइयों ने माल छीन लिया है। मौला विरासत में मुझे कुछ भी नहीं मिला। परवरदिगार तू मेरा रब है, सबसे बेहतरीन दोस्त है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा खालिक है, तू ही मेरी मदद फरमा। वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजरता चला गया, भाई मालदार होते चले गए, नौजवान के यहाँ फाके बढ़ते चले गए, गरीबी बढ़ती गई, मुफलिसी बढ़ती चली गई। जहन है आप लोगों का, सुन रहे हैं, कहो सुभान अल्लाह। परेशान हुआ, खूब परेशान होने लगा, बहुत ज्यादा जब फाके होने लगे, बहुत ज्यादा जब परेशानी गरीबी की वजह से होने लगी, तो एक दिन बीवी कहने लगी, औरत तो औरत होती है, कहने लगी देखो तुम्हारे भाई कितने मालदार हैं, गाड़ियां भी हैं, अच्छे कपड़े भी हैं, अच्छा लिबास भी है, अच्छे बिस्तर भी हैं, सब कुछ अच्छा है, खाने पीने के बर्तन भी अच्छे हैं, मकान अच्छा है, इज्जत अच्छी है, शोहरत अच्छी है, पूरे इलाके में उनका बिजनेस फैला हुआ है, खूब माल है, उनकी बीवियां अच्छे अच्छे जोड़े पहनती हैं, अच्छे अच्छे जूता चप्पल पहनती हैं, अच्छे जेवरात पहनती हैं, खूब सजती संवरती हैं। एक तुम हो, तुम्हारे घर में ढंग से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा, चूल्हे पर हांडी कई कई दिन में चल रही है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, पहनने के लाले पड़े हुए हैं, रहने के लाले पड़े हुए हैं, घर की छत अब टपकने लगी है, बारिश का मौसम है, मैं परेशान हो गई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि तुमको छोड़कर चली जाऊं, मैं सोच रही हूँ तुमको छोड़कर चली जाऊं। औरत तो ऐसी ही होती है, आज के दौर की औरतें भी ज्यादातर ऐसी है, सब नहीं है, ज्यादातर ऐसी है। तुम 29 दिन तक बकरा खिलाना, मुर्गा खिलाना, 5,000 10,000 का सूट खरीदवाना, खूब महंगी महंगी चीजें खरीद कर लाना, और 30वें दिन तुम गलती से उसको मायके जाने से किसी वजह से मना कर देना, तो अपने बाप को फोन लगाकर कहेगी, ऐ मेरे अब्बा तुमको पूरे इलाके में एक यही फकीर मिला जिसके घर न खाने को है न पहनने को है। आज की ज्यादातर औरतें ऐसी हैं जो अपने शौहरों की शिकायतें करती हुई नजर आती है। याद रखो, वफादार बीवी वो है कि जब शौहर थका मांदा काम धंधे से आए, तरबतर हो, पसीने में मेहनत करके आए, कमा के लाए या ना लाए, जब वो परेशानी में आए, जब वो टेंशन लेकर के आए, जब वो लोगों की गालियां खाकर आए, काम धंधा करके आए और घर में आए, दरवाजे पर कदम रख दे और उसकी बीवी मुस्कुरा कर उसका इस्तकबाल कर ले, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उसको हज का सवाब अता फरमाता है। सुनो तवज्जो से, आज की बीवियां तो शिकायत करने में लगी हैं, ये वाला सूट खरीद कर दिया, ये तो पहले से फला की औरत पहनी थी, ये वाला सूट खरीद के दिया, ये फला की औरत पहले से पहनी थी। ऐ मेरी खातूनों, मेरी माँ बहनों, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, ऐ मेरी माँ बहनों, शिकवे शिकायत ना किया करो। देखो महबूबे परवरदिगार है मुस्तफा, मालिक दो जहां है, जन्नत के भी मालिक हैं, शफीए महशर हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ अली मैंने अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दिया है। तवज्जो है आप हजरात की, अपनी बेटी फातिमा का निकाह तुम्हारे साथ कर दिया है। अली तुम्हें दहेज अगर चाहिए, माल अगर चाहिए तो बताओ, मैं मुस्तफा हूं, मुस्तफा अल्लाह का हबीब हूं, पैगंबर हूं, अल्लाह ने कुरान अता फरमाया है। और सुनो अली, अगर तुम्हें दहेज चाहिए तो वो सामने जो पहाड़ है मैं इशारा कर दूं, वो सोने का बन जाए और तुम्हारे साथ साथ चला जाए। सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको दहेज ना चाहिए, आपने अपनी बेटी अता फरमा दी है, भला इससे बड़ा दहेज कोई हो सकता है? सुभान अल्लाह। वो मुस्तफा के इशारा कर दे तो पहाड़ सोने का बन जाए और साथ चला जाए दहेज में बेटी के, और वो बेटी 72 पैबंद लगी हुई चादर ओढ़ रही, 72 पैबंद लगी हुई, बुखार चढ़ा हुआ है, दर्द से बुखार इतना ज्यादा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, कर्रा रही है और आटा पीस रही है।
हजरत अली करीब आए और कहने लगे, खातून जन्नत, तुम्हारी तबीयत अलील है, लाओ कुछ काम मैं कर दूं। कहा नहीं, मैंने अपने अब्बा से ये नहीं सीखा कि शौहर की वफादार ना बनूं, मैंने अब्बा से ये सीखा है कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं शौहर की वफादार बन के जिंदगी गुजारूं। सुभान अल्लाह। आज की औरतों का हाल देखो। सुनो, वो नौजवान की बीवी कहने लगी, अगर तुमने माल नहीं कमाया, अगर तुमने सरमाया नहीं कमाया, अगर ये फाके खत्म ना हुए, ये जेबर की तंगदस्ती खत्म ना हुई, लिबास की तंगदस्ती खत्म ना हुई, तो छोड़कर चली जाऊंगी। कहा अच्छा कोशिश करता हूं। नौजवान ने कमाने की बहुत कोशिश की, खूब हाथ पैर मारे, लेकिन माल ना ला सका ज्यादा। एक दिन औरत ने बिठा लिया और कहने लगी, मैं आज से तुम्हें 1 महीने का वक्त देती हूं, अगर तुम 1 महीने में हर रोज 2 दिरहम कमा कर मेरे पास ना लाए और मुझको ना दिया, तो 30वें दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। 1 महीने का वक्त। नौजवान कहता है अच्छा ठीक है, तुमने 1 महीने की मोहलत दी है, मैं कमा कर लाऊंगा, रोजाना 2 दिरहम तुमको दूंगा, लेकिन सुनो, अगर किसी दिन ना ला सकूं तो हिसाब आखिरी दिन कर दूंगा, अगर ना ला सकूं किसी दिन, आखिरी दिन हिसाब होगा, तुम्हें 30 दिन के 60 दिरहम मिल जाएंगे। कहा ठीक है। नौजवान पहले दिन निकला, खूब कोशिश की, खूब ठेकेदारों के यहाँ, बिजनेसमैनों के यहाँ, खूब मार्केट में, खूब चौराहों पर दौड़ता रहा, मजदूरी करने वाले अड्डे पर पहुंचा, किसी ने काम पर ना रखा, किसी ने काम पर ना रखा, बहुत परेशान हुआ, थका मांदा शाम को आया, बीबी कहने लगी लाओ 2 दिरहम। कहा आज मजदूरी मिली नहीं, मजदूरी करके तो आया, माल नहीं मिला, कल हिसाब होगा, कल 4 ले लेना। कहा ठीक। नौजवान परेशान पूरी रात रब की बारगाह में सजदे में रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मौला बीवी छोड़कर जाने को कह रही है, 1 महीने का वक्त है, मौला तू ही मेरी लाज रख ले। दूसरा दिन आया, खूब मेहनत मशक्कत की, खूब दौड़ा, लेकिन माल हाथ नहीं आया। शाम को थका मांदा घर आया, बीबी ने फिर वही सवाल किया, फिर समझा दिया। तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन, 6वां दिन, सब दिन गुजरते गए, पूरे 29 दिन। कितने गुजर गए? तवज्जो है, बोलो सुभान अल्लाह। 29 दिन गुजर गए, माल हाथ नहीं आया, बहुत परेशान नौजवान। आखिर बीवी छोड़कर जाने वाली है, फाके हो रहे हैं, पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं है, ओढ़ने बिछाने के बिस्तर नहीं, खाने पीने के बर्तन नहीं। ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है, तुम्हें मकान दुकान अता फरमाई है, औलाद अता फरमाई है। हम अक्सर ये देखते हैं, हम ये हिसाब लगाते हैं, मेरे पास 4 चक्का गाड़ी नहीं, फला के पास 4 चक्का है, और सोचकर परेशान होते हैं, और सोचकर परेशान होते हैं कि माल मेरे पास नहीं, फला के पास तो है, मैं किराए पर रह रहा हूं, वो मकान में रह रहा है, उसके मकान में टाइल लगी है, उसके घर में कुमकुमे लगे हैं, एसी लगा है, मेरे घर में पंखा लगा है। खूब परेशान होते हैं और सोचते हैं कौन सा दिन आएगा मैं मालदार होऊंगा। कभी हम ये हिसाब नहीं लगाते, ऊपर वाले का हिसाब लगाते हैं जो मालदार है। कभी हम नीचे वाले का हिसाब नहीं लगाते कि जिसके पास छत भी नहीं, कपड़े भी नहीं, सड़क के किनारे झोपड़ी डालकर बगैर लाइट के जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका क्या हाल है। अगर हम नीचे वालों का हिसाब लगाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नजर आएंगे। मालदार का हिसाब लगाओगे परेशान हो जाओगे, किसी गरीब का हिसाब लगाओ तो तुम्हें खुशी होगी कि अल्लाह ने तुम्हें कितना अता फरमाया है, जितना मिला है बहुत है। अल्लाह फरमाता है लन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुमको और ज्यादा अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो जितना तुमको मिला है। 29 दिन गुजर गए, नौजवान परेशान कि अब कल आखिरी दिन है, बीवी छोड़कर जाने को कह रही है,
और 60 दिरहम देना है, अभी तो एक भी दिरहम नहीं कमाया, 29 दिन से जाता हूं, काम मिलता नहीं है, काम मिलता नहीं है। पूरी पूरी रात रब की बारगाह में रोता था, गिड़गिड़ाता था, मौला मेरी लाज रख ले, बीवी छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि गरीब हूं, फाके हो रहे हैं। तीसरे दिन जब बहुत परेशान हुआ तो किसी ठेकेदार के पास पहुंचा, कहने लगा आप रख लो मुझे मजदूरी पर, बीवी छोड़कर जाने वाली है, 2 दिरहम ही देकर उसको विदा कर दूंगा, 2 दिरहम देकर उसको विदा कर दूंगा कि ले तेरी विदाई है। अब तो वो रहने वाली नहीं, क्योंकि 60 दिरहम देने हैं। वो ठेकेदार बोला ठीक है 2 दिरहम ले लेना, काम कर। पूरे दिन मजदूरी किया, पूरे दिन खूब मेहनत किया, खूब परेशान रहा, शाम को 2 दिरहम लेकर के घर पहुंचा, पसीने में तरबतर है। जाकर देखा घर का नजारा अलग है, घर सजा हुआ है, खुशबुएं आ रही हैं, सुभान अल्लाह, हर चीज मुहैया है। अनाज देखो तो ढेर लगा पड़ा है, पीने की जरूरत की जो चीजें थी ढेर लगा पड़ा है, कपड़ा देखो ढेर लगा पड़ा है, बिस्तर देखो ढेर लगे पड़े, सारी चीजें नई मौजूद है, जेवर भी बहुत सारा, पूरा संदूक सजा हुआ रखा है। परेशान है, बीबी नया जोड़ा पहनकर सजी सबरी जेवरात से पूरी तरह आरास्ता होकर बैठी हुई है। बहुत परेशान हुआ, मेरा घर है कि नहीं, बीबी मेरी है कि नहीं, लग तो सही रहा है मेरा घर है, एड्रेस भी सही जगह पहुंचा हूं, दरवाजा भी सही, बीबी भी मेरी लग रही है, लेकिन इतना जेवर, इतने कपड़े, इतना अनाज, इतना साजो सामान अचानक कहां से आ गया, और मैंने कमाया भी नहीं, और इसके जाने का आखिरी दिन है, माल कहां से आया, और ये जाने वाली है, सजी सबरी बैठी है, क्या मामला है। बीबी के पास पहुंचा, बताओ ये अनाज, ये गल्ला कहां से आया, ये जेवरात कहां से आए, ये कपड़ा कहां से, ये बर्तन भाड़े कहां से आए, ये बिस्तरे कहां से आए, ये घर में गुलदस्ते कहां से आए, ये सजावटें कैसी हुई। बीबी कहने लगी, सुनो तवज्जो से सुनो, कहने लगी जब आप सुबह मजदूरी करने निकले थे ना, तो एक आया था, बहुत नूरानी चेहरा था, बहुत नूरानी, आवाज में भी बड़ी कशिश थी, उसके पास एक तबाक था। क्या था? तवज्जो, एक तबाक था, एक बर्तन था बड़ा सा, एक तश्त था, और उस पर रुमाल ढका हुआ था। उसने उस रुमाल को हटाया और कहा, लो ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है जो 29 दिन से वो कर रहा था, तुम्हारे शौहर की मजदूरी है जो 29 दिन से कर रहा था। मैंने उसको ले लिया, अंदर लेकर आई, और मैंने उस मोतियों में से एक मोती उठाया, उन मोतियों में से एक मोती उठाया, वो बताने वाला बताकर गया ये 58 मोती है, 29 दिन की मजदूरी, क्योंकि तुमने 2 रोजाना दिरहम मांगे थे, 2 मोती पर तुम्हारा शौहर काम करता था, 58 देकर जा रहे हैं, 29 दिन की मजदूरी। अफसोस ये कि आज तुम्हारा शौहर किसी और के यहां काम करने चला गया, अगर वो लगा रहता तो इसी तरह के मोती मिल जाते हर महीने। वो औरत अपने खाविंद से कहती है, मैं उन मोतियों में से एक मोती बाजार लेकर गई, एक दुकानदार पर पहुंची, वो देखकर हक्का बक्का रह गया और कहने लगा मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता। खातून ऐसा करो, फला इलाके में जेवरात की दुकानें हैं, उन दुकानों में एक दुकानदार है, उसकी निशानी ये है, वो बड़ा ईमानदार है, जाओ उसके पास, वो तुम्हें इसकी कीमत बता देगा जो सही होगी। वो औरत अपने खाविंद से कहती है, मैं उस ईमानदार दुकानदार के यहाँ मोती लेकर गई, मैंने उसको मोती दिखाया, वो मोती देखते ही कहने लगा ये तुमको कहां से मिला जानती हो, एक मोती की कीमत 60 ऊंट सोने से लाद दिए जाए तब पूरी होगी। कितनी कितनी ऊंचा बोलो, 60 ऊंट एक मोती की कीमत, और कितने मोती? 58। ऐ मेरे शौहरे नामदार,
ऐ मेरे खाबिन, तुम कहां मजदूरी करने 29 दिन से जा रहे थे और आज भला उसकी मजदूरी क्यों छोड़ दी? इतना माल मिल रहा था फिर भी छोड़कर चले गए। देखो ये जो खरीद कर लाई हूं, एक मोती से खरीद कर लाई हूं और बहुत सोना भी बाकी है। 60 ऊंट सोने से भरकर घर पर लाई और 57 मोती मैंने बचा कर रखे हैं। ये सारा माल उसी देने वाले ने दिया और कहा तुम्हारे शौहर की मजदूरी है, बताओ तुम कहां काम करते थे? शौहर कहता है मैं किसी दुनियादार के पास काम नहीं करता था, मैं दोपहर तक मजदूरी तलाशता था और जब कोई काम ना मिलता था तो मैंने जंगल में एक छोटी सी कोठरी देख ली थी। उस कोठरी में जाकर खुद को रब की बारगाह में पेश कर देता था और दुआ करता था मौला मेरी लाज रख ले। वो जो हिसाब देकर गया है फरिश्ता था, वो जो हिसाब देकर गया है फरिश्ता था, जन्नत से मोती लाया था। ये उस चीज का इनाम है कि जिस चीज का इनाम अल्लाह दिया करता है। बीवी पूछने लगी ये किस चीज का इनाम है? कहा जो सब्र का दामन पकड़े रहता है अल्लाह उसको इसी तरह बरकतों रहमतों से माला माल फरमा देता है। शहर तैबा का, कहो सुभान अल्लाह, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, कहो मचल कर सुभान अल्लाह। शहर तैबा का, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। रोज आकर ये कहती है मदीने में जन्नत, कहो सुभान अल्लाह। रोज आकर ये कहती है मदीने में जन्नत, या नबी आपका, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको भी शहर मदीना के बाजार देखने की तौफीक अता फरमाए, उनकी ज़ियारत अता फरमाए, मस्जिद बिलाल की आपको ज़ियारत अता फरमाए, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक की ज़ियारत अता फरमाए, मस्जिद अली की ज़ियारत अता फरमाए, मस्जिद कुबा की ज़ियारत अता फरमाए, मस्जिद क़िबलतैन की ज़ियारत अता फरमाए, मस्जिद बुखारी मस्जिद जुमा की ज़ियारत अता फरमाए। मौला तबारक व तआला जंगे ओहद जहां हुई, ओहद के पहाड़ की ज़ियारत आपको अता फरमाए, जबले नूर जबले सवार की ज़ियारत अता फरमाए और मस्जिद नबी शरीफ की ज़ियारत अता फरमाए और उस मस्जिद हराम में सजदे करने की तौफीक अता फरमा दे कि जहां एक सजदा नहीं 1,00,000 सजदों के बराबर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब पर करम फरमाए कि आने वाले साल में आप सबको हज की सआदतों से माला माल फरमाए। पिछले जुमा मैंने चंदा किया था और आपने उसमें खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। कुछ भाइयों ने बोल दिया था उस जुमा में नहीं दिया था, अगर वो लाए हैं तो दे दें, अगर अभी नहीं लाए हैं तो अगले जुमा लेकर के आए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने जब ही बोला था और तभी दे दें, आपका जब मौका बन जाए तब दे दें। कोशिश करें कि जल्द से जल्द उसको निपटा दें।